Hello everyone. In this video, we will be doing the explanation of the second part of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, that is written by William Saroyan. In the first part, we have read that Aram and Murad were enjoying horse riding, and when Aram tried to do it alone, the horse made him fall. Now let's move on to the remaining part. My cousin Murad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. Okay, so as soon as Aram fell down, Murad came running to Aram. जैसे ही उस घोड़े ने अरम को नीचे गिराया, मुराद उसके पास भागता हुआ आया. And he said that he was more worried about the horse, not about Aram falling. और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे उस हॉर्स की चिंता है. बिकॉज ही हैज़ टू कीप द हॉर्स बैक एट इट्स प्लेस, क्योंकि उनको उस घोड़े को वापस उसकी जगह पर पहुंचाना था. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly and I will be near. So Murad asked to Aram that they have to find the horse. So he asked him to go on one way and he himself decided to go another way in search of the horse and said that if you find it, behave gently. तो मुराद ने अरम को बोला कि तुम एक तरफ जाओ, मैं दूसरे रास्ते पर जाता हूँ, और अगर तुम्हें हॉर्स कहीं पर मिले तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना और मैं तुम्हारे आसपास ही होऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. ओके, सो अरम जो है उसी रोड पर आगे चला गया और मुराद जो है इरिगेशन डिच की तरफ गया उस घोड़े को ढूंढने के लिए. It took him half an hour to find the horse and bring him back. So Murad got the horse back almost after half an hour. और उस हॉर्स को पकड़ने में मुराद को लगभग आधा घंटा लग गया. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. So Murad said that everyone is awakened now and they have to keep the horse back fastly. He asked Aram to climb on the horse. मुराद ने कहा कि सब लोग जग गए हैं, अब तुम जल्दी से इस घोड़े पर बैठ जाओ क्योंकि हमें इसे वापस छोड़ना है. What will we do? I said. So Aram asked to him, what will they do? Okay, अरम ने उससे पूछा कि अब वो क्या करेंगी. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. सो अरम ने पूछा कि वो क्या करेंगे और इस पर मुराद ने रिप्लाई किया दैट दे विल कीप इट बैक और हाइड इट समवेयर टिल नेक्स्ट मॉर्निंग. मुराद ने बताया कि या तो वो इसको वापस रख देंगे उसकी जगह पर या फिर इसे अगली सुबह तक वो छुपा देंगे. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. So with Murad's tone, Aram understood that Murad is not worried at all and he knew that Murad is not going to keep the horse back and he would hide it. जिस तरीके से मुराद ने आंसर किया था, अरम उसकी आवाज़ से, उसके बोलने के तरीके से ये समझ गया था कि जो मुराद है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है इस घोड़े को लेकर के, और अरम ये जानता था कि मुराद आज इस घोड़े को वापस नहीं करेगा और इसे कहीं छुपा देगा. Where we will hide him, I said. I know a place, he said. So Aram asked Murad that where they are going to hide him. अरम ने मुराद से पूछा कि वो इसे कहाँ छुपाएंगे. सो मुराद ने रिप्लाई किया कि उसे एक जगह पता है जहाँ पर वो इसे छुपा सकते हैं. How long ago did you steal this horse? I said. So after that immediately Aram asked Murad that when did he steal that horse and for how long it is with him. फिर अरम ने पूछा मुराद से कि तुमने घोड़ा कब चुराया और तुम्हारे पास ये कितने लंबे समय से है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. So suddenly Aram got this thought that maybe it has been quite some time and every day Murad has been taking these morning rides, and since he knew about Aram's longing to riding the horse, so he came to him only this morning. अचानक से अरम के मन में ये थॉट आया कि हो सकता है कि जो घोड़ा है मुराद के पास बहुत लंबे समय से हो और बहुत लंबे समय से मुराद इस पर हर सुबह राइडिंग कर रहा हो, और आज सुबह वो उसके घर पर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो जानता था कि अरम को भी हॉर्स राइडिंग का कितना शौक है. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? So
When Aram asked such questions to Murad, Murad said to him that who told you that I stole a horse? Murad ने Aram से कहा कि तुमसे किसने कहा मैंने घोड़े को चुराया है? So at this Aram replied that I am just asking for how long you have been riding on this horse. तो Aram ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम कितने लंबे समय से इस घोड़े पर राइडिंग कर रहे हो. Not until this morning. Murad replied that only this morning he has started riding the horse. Murad ने रिप्लाई किया कि उसने आज सुबह से ही इस घोड़े पर हॉर्स राइडिंग करनी शुरू की है. Are you telling the truth? I said. So Aram didn't believe on him, so he asked him, Are you telling the truth? Aram को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उससे पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सिर्फ आज सुबह से इस घोड़े पर हॉर्स राइडिंग कर रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. Murad replied Aram that of course not, he is not telling the truth. Murad ने Aram से कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा. But if somebody has found out that we have stolen the horse, so you must reply we have done it only today. So Murad कहता है कि अगर किसी ने हमें पकड़ लिया और किसी को ये पता लग गया कि घोड़ा हमारे पास है, तो तुम्हें उसको बस ये रिप्लाई करना है कि ये घोड़ा हमारे पास सिर्फ आज सुबह से ही है. All right, I said. तो अरब ने कहा ठीक है, अगर किसी को पता लग जाए कि ये घोड़ा हमारे पास है या कोई हमें पकड़ ले इस घोड़े के साथ में, तो मैं कहूँगा कि ये घोड़ा हमारे पास सिर्फ आज सुबह से ही है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. So after that they took the horse to a barn of a deserted vineyard. वो एक deserted vineyard के एक barn में उस घोड़े को ले गए. Barn means animal yard. And the owner's name of that vineyard was Fatwazian. वो जो vineyard था वो फैतवाजियन नाम के एक फार्मर का हुआ करता था, बट अब वो वहाँ पर नहीं रहता. एंड देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न. और वहाँ पर उस बार्न में कुछ ओट्स और थोड़ा सा अल्फाल्फा एक तरह का चारा होता है, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था. देन दे स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स होम. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. After that, Murad started telling the Aram about horse handling. उसके बाद मुराद ने आरम को बताना शुरू किया कि हॉर्स हैंडलिंग कैसे करते हैं. सो ही टोल्ड हिम दैट इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल दी हॉर्स एट फर्स्ट. उसने कहा कि घोड़े को हैंडल करना बहुत आसान नहीं है. एट फर्स्ट द हॉर्स बिहेव इन वाइल्ड मैनर एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो अलॉन्ग विद द हॉर्स, बट ही हैज़ अ स्पेशल वे टू डील विद द हॉर्स. सो आफ्टर सम टाइम ही कुड डू दैट. मुराद ने आरम से कहा कि स्टार्टिंग में जो है वो घोड़ा बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जैसा कि उसको घोड़ों के साथ डील करना आता है, वो एक स्पेशल तरीका जानता है जिससे वो घोड़ों के साथ डील कर सके. तो कुछ देर के बाद उसने घोड़े को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया एंड आफ्टर दैट ही कुड मेक इट टू डू एनीथिंग. और उसके बाद वो उस घोड़े से वो सब कुछ करवा सकता था जो वो चाहता था. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of an understanding, I said. A simple and honest one, he said. तो इस पर आरम ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तुमने उसको ऐसे कैसे हैंडल किया. तो मुराद ने रिप्लाई किया कि उसकी घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है. फिर आरम ने दोबारा से पूछा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग. तो उसने आंसर किया कि एक सिंपल और ऑनेस्ट वन. दैट मीन्स एक बहुत सिंपल और बहुत ईमानदारी भरी अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. वेल, आई शेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. सो एट दिस आरम रिप्लाई दैट आई विश आई हैड सच एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हॉर्स. तो फिर आरम ने कहा मुराद से कि काश मैं भी ये जान पाता कि हॉर्स के साथ कैसे एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. When you get to be 13, you will know how to do it.
Murad told Aram that you are just a small boy of 9 years and once you will become 13-year-old, you will understand horse better and you will be able to make the horse whatever you like. मुराद ने अरम से कहा कि तुम अभी सिर्फ 9 साल के हो और तुम काफ़ी छोटे हो, लेकिन जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि घोड़ों के साथ कैसे डील करना है. I went home and ate a hearty breakfast. So after that Aram went home and he had a heavy breakfast. उसके बाद अरम जो है घर चला गया और उसने मन भर के अच्छे से ब्रेकफास्ट किया. That afternoon my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. So that day Uncle Khusro visited to Aram's home. उस दिन Uncle Khusro जो हैं वो अरम के घर पर आए. We have already read in the previous part about Uncle Khusro and we know that he was supposed to be the one of the cagest persons of his family. हम जानते हैं कि अंकल खुसरो जो है वो उसकी फैमिली के केजियस्ट पर्सन में से एक हैं. So that day he visited them. He sat in the parlor. Parlor means a drawing room. Okay, वो अंकल खुसरो आए और पार्लर में बैठ गए. Sipping and smoking and remembering the old country. So Uncle Khusro was enjoying the coffee, he was smoking and talking about the old country. Old country means the place where they used to live earlier. Uncle Khusro वहाँ पर बैठे हुए थे, वो कॉफ़ी enjoy कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और अपनी पुरानी कंट्री के बारे में बात कर रहे थे. As we know that now they all are living a nomadic life. वो सब nomadic life जी रहे हैं. They are not having their प्रॉपर परमानेंट हाउस. उनकी प्रॉपर परमानेंट हाउस नहीं है. तो अंकल खुसरो उस प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ वो पहले रहा करते थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन असाइरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. So at that time one more visitor arrived and his name was John Bairo and he was a farmer. Although he was not an Armenian, he was an Assyrian, but still he had learned to speak Armenian. तभी उस वक्त एक और विजिटर उनके घर पर आया और वो विजिटर कौन था? वो था जॉन बायरो नाम का एक फार्मर. ऑल्दो जॉन बायरो जो है वो एक असाइरियन है, वो आर्मेनियन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आर्मेनियन बोलनी सीख ली थी. और अरम हमें कहता है कि शायद उसने लोनलीनेस की वजह से, उसने अकेलेपन की वजह से आर्मेनियन बोलनी सीखी थी. बिकॉज वो असाइरियन था. हो सकता है उसके आसपास के लोग असाइरियन ना हों, सब आर्मेनियन हों और सब जितने भी लोग आसपास रहते हों सब आर्मेनियन बोलते हों. तो इसलिए वो असाइरियन बोलने वाला अकेला ही इंसान था, तो ऑब्वियसली उससे कोई बात नहीं कर पाता, इसीलिए उसने आर्मेनियन सीखी. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." So Aram's mother offered him coffee, tobacco and cigarette. And John Bairo was looking very sad. Okay, अरम की मदर ने उसे कॉफ़ी और टोबैको ऑफ़र किया और जॉन बायरो ने वो ले लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था. सो आफ्टर हैविंग ऑल दिस थिंग्स ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज हॉर्स. सो उसने कॉफ़ी लेने के बाद अपने वाइट हॉर्स के बारे में बोलना शुरू किया. एंड ही सेड दैट ही हैड अ वाइट हॉर्स एंड दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ. एंड देन ही सेड दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड हाउ द हॉर्स वाज स्टोलन. सो जॉन बायरो कहता है कि उसका एक वाइट हॉर्स था, लेकिन लास्ट मंथ उस हॉर्स को किसी ने चोरी कर लिया और अभी तक वो घोड़ा जो है वापस नहीं आया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो घोड़ा चोरी कैसे हुआ. सो नाउ वी नो दैट जॉन बायरो वॉज सैड बिकॉज ऑफ हिज वाइट हॉर्स. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, "Is no harm? What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is the crying over a horse?" We know this man Uncle Khusro, we know his behavior, and he always behave in irritated manner. So he shouted and said, "It's not a great deal to lose a horse. Did we all not lost our homeland? So why are you crying for such a thing like a horse?" हम जानते हैं कि अंकल खुसरो का नेचर कैसा है. वो हमेशा गुस्से में, हमेशा इरिटेट होकर बातें करते हैं. तो जब जॉन बायरो ने अपने घोड़े के लिए
थोड़ा सा दुख दिखाया तो अंकल खुसरो चिल्लाने लगे कि घोड़े को खो देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हम सब ने क्या अपने घर नहीं खो दिए, हमने अपना होमलैंड खो दिया, तो क्या हम रो रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं रो रहे। तो तुम क्यों हॉर्स के लिए रो रहे हो? हॉर्स को खोना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? After listening Uncle Khusro's statement, John Byro replied him. He said that for you it may not be a great thing because you are a city dweller. You live in city. But I am a farmer, and what is about my Surrey? Surrey means cart. So he says that without a horse, what is the use of a Surrey? जॉन बारो ने कहा कि आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि आप सिटी में ही रहते हो, लेकिन मैं तो एक फार्मर हूँ और मैं बहुत दूर से यहाँ पर आता हूँ, और अगर मेरे पास घोड़ा नहीं होगा तो मेरे सरे का क्या होगा? सरे मीन्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी। ओके, तो मेरी घोड़े गाड़ी का क्या होगा? और बिना घोड़े के एक सरे होने का, एक घोड़े गाड़ी होने का क्या फ़ायदा? Pay no attention to it, my Uncle Khusro wrote. So as we know the habit of Uncle Khusro, he always replied a same thing. He again did that. जैसा कि हमको पता है अंकल खुसरो हमेशा एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, उन्होंने इस बार भी वही कहा, that pay no attention to it. इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो. I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my Uncle Khusro shouted. My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my Uncle Khusro wrote. So जॉन बैरो ने बोला कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 माइल्स चलना पड़ा है। दैट मीन्स अगर उसके पास कार्ट होता तो वो उससे आ जाता, पर अब उसका हॉर्स तो चोरी हो गया तो वो कार्ट में तो आ नहीं सकता, तो इसलिए उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 माइल चलना पड़ा है। एट दैट अंकल खुसरो रिप्लाइड दैट यू हैव लेग्स एंड यू कैन वॉक ऑन फुट। अंकल खुसरो ने रिप्लाई किया कि तुम्हारे पास पाँव हैं और तुम अपने पाँव से चल सकते हो। सो फार्मर सेड दैट माई लेफ्ट लेग पेन्स मी। फार्मर ने बोला कि मेरे जो बायां पाँव है उसमें बहुत दर्द है। सो अगेन अंकल खुसरो रिप्लाइड द सेम स्टेटमेंट, ही सेड पे नो अटेंशन टू इट। दोबारा से अंकल खुसरो ने वही बात रिपीट की कि तुम इस पर ध्यान मत दो। So whatever anybody says, it doesn't matter to Uncle Khusro. He keeps saying the same thing and same sentence all the time. अंकल खुसरो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने जो इंसान है वो क्या बोल रहा है, वो इन रिटर्न हमेशा ही एक ही बात बोलते थे, दैट इज़ पे नो अटेंशन टू इट। इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। Then John Byro told him that he paid $60 for that horse. फिर जॉन बायरो ने अंकल खुसरो को बताया कि उसने इस घोड़े को $60 में ख़रीदा था। So at that Uncle Khusro replied that I don't value the money and I spit on it. अंकल खुसरो ने कहा कि मेरे लिए पैसों का कोई मतलब नहीं है, मैं इस पर स्पिट कर देता हूँ, मैं इस पर थूक देता हूँ, दैट मीन्स इसकी मेरे लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. And after that Uncle Khusro got up and walked out banging the door. Okay, उसके बाद अंकल खुसरो जो है वो गुस्से में खड़े हो गए और दरवाजे को जोर से पटकते हुए घर के बाहर चले गए। My mother explained, he had a gentle hurt, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. तो जब अंकल खुसरो इस तरीके से गुस्से से बाहर चले गए, आराम्स मदर सपोर्टेड अंकल खुसरो एंड ही सेड टू जॉन बायरो दैट दो ही बिहेव्ड इन सच अ रैश मैनर बट ही हैड अ जेंटल हर्ट। ओके, आराम की मदर ने जॉन बायरो से कहा कि ऑल्दो जो अंकल खुसरो हैं वो इस तरीके से बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उनका जो हर्ट है वो अच्छा है, वो दिल से अच्छे इंसान है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ होमसिक। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो होमसिक है, उनको अपने पुराने घर की याद आती है, जहाँ वो पहले रहा करते थे, उन्हें उस प्लेस की याद आती है और इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। द फार्मर वैंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद्स हाउस। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. So after that John Byro left the place and Aram ran towards Murad's house. उसके बाद जॉन बायरो वहाँ से चले गए और आराम भाग करके मुराद के घर पर गया। When he reached there, he found out that Murad was sitting under a peach tree and he was trying to repair a hurt wing of a young robin. Okay, so जब आराम मुराद के घर पर पहुंचा, उसने देखा कि मुराद एक
पीच ट्री के नीचे, एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। एंड ही वॉज हैविंग अ यंग रॉबिन, उसके पास में एक यंग रॉबिन है। रॉबिन इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, एक तरह की बर्ड होती है रॉबिन। सो ही वॉज हैविंग अ रॉबिन एंड ही वॉज ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ इट। उस रॉबिन के विंग में चोट लगी हुई है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही। तो मुराद जो है उस विंग को, उस बर्ड के उस पंख को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड एंड मुराद जो है वो उस बर्ड से बात करने की भी कोशिश कर रहा है। सो विद दिस इंसिडेंट वी केम टू नो दैट मुराद वॉज एन एनिमल लवर एंड ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन ऑल्सो। सो इस तरीके से, इस इंसिडेंट से हमको पता लगता है कि जो मुराद है वो एक एनिमल लवर है और वो काइंड हार्टेड भी है। पहले भी हमने देखा कि दैट व्हेन मुराद वॉज डीलिंग विद द हॉर्स ही हैड अ स्पेशल विद द हॉर्स, ही न्यू हाउ टू डील विद दैम। मुराद को पता था कि हॉर्स के साथ कैसे डील करना है। एंड हेयर ऑल्सो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प अ रॉबिन इन फ्लाइंग, और यहाँ पर भी वो एक रॉबिन बर्ड की हेल्प कर रहा है ताकि वो उड़ पाए। What is it? He said. The farmer, John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. When Aram reached his house, Murad looked at him and he asked, what happened? Why are you here? So he replied, the farmer, John Byro, and he mentioned the incident what happened at the house, and he told him that he wanted his horse back. And then he said to Murad to do a promise that he will not return the horse back until Aram will learn to ride it. So Aram ने मुराद को सारा इंसिडेंट बताया कि जॉन बायरो जो हैं वो घर पर आए थे, उनको अपना घोड़ा वापस चाहिए और तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है। और उसके बाद उसने मुराद से कहा कि मुझे प्रॉमिस करो तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइडिंग करना सीख नहीं लूँगा। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Garogalian family to steal? The horse must go back to its true owner. सो जब अरम ने मुराद से कहा कि वो उस घोड़े को तब तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वो हॉर्स राइडिंग सीख ना ले, so at this Murad replied that you will take at least a year to learn horse riding. मुराद ने बोला कि तुमको हॉर्स राइडिंग सीखने में लगभग पूरा 1 साल लग जाएगा। And then Aram replied, it's okay, we can keep the horse for a year. तो अरम ने बोला कोई बात नहीं, हम इस घोड़े को 1 साल तक रख लेंगे। So at this मुराद got shocked. मुराद ये बात सुनकर शॉक हो गया और अचानक से अपने पाँव पर उछल कर खड़ा हो गया। And he said, what? That means what are you saying? तुम क्या कह रहे हो? Are you inviting a member of the Garogalian family to steal? That means क्या तुम Garogalian family के एक मेंबर को ये कह रहे हो कि उस घोड़े को चुरा लो? The horse must go back to its true owner. We have to return the horse to its true owner. हमें इस घोड़े को उसके true owner को वापस करना ही होगा. When I said, in 6 months at the latest, he said. सो अरम ने कहा ओके, हमें कब इसे वापस करना होगा? तो मुराद ने रिप्लाई किया कि लगभग 6 महीने में तो हमें इसे वापस करना ही होगा। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. And after saying so, Murad threw the bird into the air, and then the bird started flying. Although it fell twice, but at last it was able to get a flight. उसके बाद मुराद ने उस बर्ड को, उस रॉबिन को हवा में उछाला ताकि वो उड़ सके। ऑल्दो वो बर्ड 2 बार नीचे गिरी, उसने बहुत कोशिश की और फाइनली वो उड़ पाई। Early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. As they have decided earlier that they would return the horse back, but they didn't did it and they continued their horse riding. Although they have decided that they would return the horse the next day, but they did not
डू सो, जैसा कि उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो अगले दिन जो है उस घोड़े को वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. दे कंटिन्यू देयर हॉर्स राइडिंग, उन्होंने अपनी हॉर्स राइडिंग को कंटिन्यू रखा. एंड एवरी डे अर्ली मॉर्निंग दे यूज टू टेक द हॉर्स फ्रॉम इट्स हाइडिंग प्लेस एंड देन दे यूज टू राइड. सो हर सुबह वो उस घोड़े को उस जगह से वापस लेकर आते जहाँ पर उन्होंने उसको छुपाया था, उस वाइन यार्ड में, और हर सुबह वो इस पर राइडिंग करते. एवरी डे व्हेन अरम यूज टू राइड द हॉर्स अलोन इट मेड हिम फेल. और हर दिन जब भी अरम जो है उस घोड़े पर अकेले राइडिंग करने की कोशिश करता, हर दिन घोड़ा उसे गिरा देता और वो ग्रेव पाइन्स के ऊपर, छोटे पेड़ों के ऊपर चला जाता और उसे गिराने के बाद वो भाग जाता. But still Aram always had a hope that within 6 months he will learn the horse riding. लेकिन फिर भी अरम को ये उम्मीद थी कि वो विदिन 6 मंथ, जैसा कि मुराद ने बताया था कि वो 6 मंथ तक उस घोड़े को अपने पास रख सकते हैं और फिर वो वापस कर देंगे, तो उसे लगता था अरम को कि विदिन 6 मंथ वो हॉर्स राइडिंग सीख लेगा. One morning on the way to Fatwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. So one day what happened when he was returning towards the Fatwajian deserted vineyard to put the horse back, they met John Byro. एक दिन जब वो उस घोड़े को उस डिजर्टेड वाइन यार्ड में, जहाँ पर उन्होंने उसको छुपा के रखा था, वहाँ रखने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जॉन बायरो दिखाई दिए, हु वॉज गोइंग टूवर्ड्स दी टाउन, जो कि टाउन की तरफ जा रहे थे. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेट, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स. सो वैन मुराद saw that John Byro is in front of them, he said to Aram that let me do the talking, I know how to deal with farmers. So जब मुराद ने देखा कि जॉन बायरो उनके सामने हैं, उन्होंने अरम से कहा कि मुझे इनसे बात करने दो, मैं जानता हूँ कि फार्मर के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है. So this was the habit of Murad. He always used to say that I know how to deal with that, I know how to deal with this. So he always say that I have a way with this and that. So ये एक मुराद की हैबिट थी कि हमेशा वो यही कहता था कि मैं जानता हूँ कि कैसे इसके साथ डील करना है या कैसे किसी भी चीज़ के साथ डील करना है, और वो हमेशा कहता था कि मुझे चीज़ों के साथ में डील करने का एक तरीका आता है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. सो मुराद विश जॉन बायरो गुड मॉर्निंग. मुराद ने जॉन बायरो को विश किया गुड मॉर्निंग, बट जॉन बायरो वॉज लुकिंग एट द हॉर्स एंड ही वॉज स्टडीइंग इट ईगरली. दैट मीन्स ही वॉज लुकिंग इट वेरी केयरफुली. सो जब मुराद ने जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग विश किया, जॉन बायरो की नज़र जो है वो उस घोड़े पर बढ़ी और उन्होंने बहुत ध्यान से उस घोड़े को देखना शुरू किया. एंड ही रिप्लाइड, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स. ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? My heart, my cousin Murad said in Armenian. So after studying the horse properly, John Byro replied them, he wished them good morning and he asked the name of their horse. John Byro ने उन्हें good morning wish किया और कहा कि तुम्हारे इस घोड़े का नेम क्या है. So Murad replied in Armenian. मुराद ने आर्मेनियन में रिप्लाई किया और उसने कहा that our horse name is My Heart. क्या है उनके घोड़े का नाम? My Heart. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? So John Byro praised the name. John Byro ने उस horse की name को praise किया. He said that it is a lovely name for a lovely horse. And he said that I'm sure that it is the horse that had been stolen from me many weeks ago. So can I check or can I look into his mouth? जॉन बायरो ने कहा कि बिल्कुल श्योर हूँ कि घोड़ा वही है जो मुझसे कई हफ्ते पहले चुरा लिया गया था. क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. So Murad replied, of course you can check into his mouth. मुराद ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं इसके मुंह में. And the farmer started checking the mouth of the horse. और जॉन बायरो ने उसके मुंह को देखना शुरू किया. Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends.
So when he checked into his mouth, he said that tooth for tooth. That means he said that it is exactly the same as my horse was. जॉन बैरो ने कहा कि बिल्कुल मेरे ही घोड़े की तरह है, बिल्कुल सेम है. एंड आई वुड स्वेयर दैट इट इज़ माई हॉर्स ओनली. और उन्होंने कहा कि मैं ये कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरा ही घोड़ा है. बट आई नो योर पेरेंट्स एंड आई नो दैट योर फैमिली इज़ नोन फॉर योर ऑनेस्टी. लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, तुम्हारी पूरी फैमिली जो है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है. इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा घोड़ा है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता, तुम सब ऑनेस्ट हो. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. लेकिन ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह है, और हो सकता है कि उसका ही ट्विन हो, उसका ही जुड़वा हो. Then he says that a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. So John Byro says to him that although my heart is saying that this is not my horse because you can't steal a horse, but a suspicious man always believe in his eyes. जॉन बैरो ने कहा कि ऑल्दो मेरा जो मन है वो ये कह रहा है कि तुम चोरी नहीं कर सकते, तो ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो एक सस्पिशियस मैन है वो हमेशा अपनी आंखों पर अपने दिल से ज़्यादा विश्वास करता है. And after saying so, he wished them good day. Good day, John Byro, my cousin Murad said. And Murad replied him, good day to you also. Murad ने उनको रिप्लाई किया, जॉन बायरो आपका भी दिन अच्छा हो. Early the morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. So next morning, what they did, they took the horse and they put it back in John Byro's barn. अगले दिन उन्होंने उस घोड़े को जॉन बायरो के बार्न में छोड़ दिया. जॉन बायरो का जो एनिमल यार्ड था वहाँ पर उसको वो रख आए. And there were some dogs, they were following them, but they did not make a sound. और जब वो जा रहे थे उस बार्न की तरफ तो उनके साथ में कुछ डॉग्स भी थे, लेकिन उन डॉग्स ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. So, अरम ने मुराद से धीरे से कहा कि मुझे लगा था कि जो डॉग्स हैं ये बाग करेंगे, भौंकेंगे. So at this, Murad replied that they would at somebody else but not with me because I know how to deal with dogs and I have a way with them. तो इस पर मुराद ने रिप्लाई किया कि हाँ, अगर कोई और होता तो वो ज़रूर भौंकते, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज मुझे उनसे डील करना आता है और मैं उनसे ट्रीट करने का एक स्पेशल तरीका जानता हूँ. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. So they put the horse back and at last Murad put his arms around the horse. He hugged him, pressed his nose into the horse's nose and patted it lovingly. उसके बाद मुराद ने उस घोड़े के गले में अपना हाथ डाला, उसे प्यार से प्रेस किया, उसके नोज़ को प्यार से प्रेस किया और उसको बहुत प्यार से थपथपाया. And then they left the place. So as we know that Murad was an animal lover and he always treat them in a special manner. मुराद जो है वो एक एनिमल लवर है, ये हम जानते हैं. इसमें बहुत सारे इंसिडेंट चैप्टर में ऐसे आए हैं that tells us that Murad was an animal lover and he has a special way to deal with the animals. और उसे एनिमल्स के साथ डील करने का एक स्पेशल तरीका आता है. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." So that afternoon, John Byro again visited Aram's house and this time he was in his surrey. John Byro उस आफ्टरनून को अरम के घर पर आए थे और इस बार वो अपने सरे से आए थे बिकॉज मुराद हैज़ रिटर्न्ड हिज हॉर्स. मुराद ने उनका जो घोड़ा था वापस कर दिया था. एंड जॉन बायरो शोड दैट हॉर्स टू अरम्स मदर एंड he said that my horse has been returned to me. He was very happy by looking at the condition of the horse. जॉन बायरो जो थे वो उस घोड़े को देखकर बहुत खुश थे because he said that the horse is stronger than ever.
जॉन बायरो ने अरम की मदर को बोला कि ये जो घोड़ा है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, एंड बेटर टेम्पर्ड टू, और अब इसका टेम्पर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से बिहेव करने लगा है. सो इन दिस वे ही वॉज अप्रिशिएटिंग द पर्सन हु हैज़ स्टोलन द हॉर्स. इस तरीके से जॉन बायरो जो है उस पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे थे जिसने उस घोड़े को चुराया था, बिकॉज घोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था पहले से और बेटर टेम्पर्ड भी था. देन ही सेज आई थैंक गॉड. उसके बाद उन्होंने बोला आई थैंक टू गॉड दैट माई हॉर्स इज बैक विद मी. So all this time when John Byro was describing all these things, Uncle Khusro was sitting in the parlor and again he became irritated and shouted. So जब जॉन बायरो ये सारी बातें बता रहा था, अंकल खुसरो जो थे पार्लर में ही बैठे हुए थे, और जैसे ही उनकी हैबिट थी वो हमेशा गुस्से में बात करते थे, वो इस बार भी इरिटेट हो गए और चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैड बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट. So he said to John Barrow that now please be quiet. उन्होंने जॉन बायरो को बोला कि अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ. Your horse has been returned. तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे पास आ गया है. Now pay no attention to it. और अब इस बात पर कोई ध्यान मत दो और इस बारे में बात ना करो. In this way the story comes to an end. At the last, Aram and Murad returned the horse to save the fame of their family, which was known for being honest and trustworthy. I hope you would like this story. Stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.